Welcome to you in 11th lecture of alcohol phenols ethers. पिछले लेक्चर 10 में हम लोगों ने फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी की थी. क्लियर? उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज रह गई थी हमारी, लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल्स एंड सम अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. इनको हम लोग एक बार जानते हैं. फर्स्ट वी गो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फिनॉल्स. अल्कोहल के ही जो है पिछले एक लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एसिडिटी ऑफ फिनॉल. वहां आपको ध्यान है, तुमने बताया था आपको कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर अल्कोहल फिनॉल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी. दिस इज अ फिनॉल. और यहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं जब इलेक्ट्रॉन पे इधर ट्रांसफर होता है तो यहां पर पार्शियल आयनिक करैक्टर डेवलप हो जाता है और साथ में डबल बॉन्ड करैक्टर यहां डेवलप हो जाता है. और यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड ये आपके पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होते हैं तो यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं. तो आर्थो पोजीशन पर आपका जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है. इसी प्रकार से ये आगे आपके डिस्प्लेस होंगे, ये फिर डिस्प्लेस होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ जाएगी एंड देन. तो आप देख रहे हैं आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस आर्थो और पैरा पोजीशन पर देंगे. ये हम लोग पिछले एक लेक्चर में जान चुके हैं. तो ये आर्थो पैरा में कौन कौन से सब्स्टिट्यूशंस हैं, आइए वो हम लोग देखते हैं. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में फर्स्ट आपका है हैलोजिनेशन. इस यहां पर जो है ब्रोमीन से हैलोजिनेशन बहुत इजीली होता है. ठीक, ब्रोमीन गिव्स हैलोजिनेशन एज दो स्टेप में हमारे पास में है, दो तरह से. फर्स्ट है इन प्रेजेंस ऑफ non-polar solvent, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड. यहां पर क्या होगा देखें ध्यान से. दिस इज फिनॉल. when you react with bromine in presence of non-polar solvent, then bromine comes on para position or on ortho position. This is para bromophenol and this ortho bromophenol. It is a major product. It is a minor. सिमेट्रिक में होने के कारण ये मेजर प्रोडक्ट होता है पैरा प्रोजेक्ट्स और ये आपके माइनर प्रोडक्ट होते हैं. But when you reaction done in presence of bromine water, in presence of bromine water, then what happens in this way? In the presence of bromine water, bromine atom comes on all ortho and para position. It gives white precipitate and its name is 2,4,6 tribromophenols. तो ये ध्यान रखिए किस कंडीशन में रिएक्शन आपसे पूछा. Now we go sulfonation. It is done in the presence of concentrated sulfuric acid. Hence, products will be different at different temperature. This is taken phenol. If reacted in presence of
concentrate H2SO4 at 25 degrees centigrade. At 25 degrees centigrade. Then your product will be ortho. And if you done this reaction at 373 Kelvin, ठीक, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी आप केल्विन में लिख सकते हैं, कितना होगा 298 केल्विन. क्लियर? देन यू ऑब्टेन, एक्सक्यूज मी, यहां पर आपका ऑर्थो प्रोडक्ट होगा एंड इट विल बी पैरा प्रोडक्ट एट लो टेम्परेचर. Ortho product is obtained, and at high temperature para product is obtained. Clear? Now Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction. It is done in presence of anhydrous ammonium chloride, which acts as a Lewis acid. You react with alkyl halide like methyl chloride, and what happens? H on ortho and para position is replaced by alkyl group in this way. This is called paracresol and this is called orthocresol. Clear? This is major product, this is minor product. Next, very important reaction, nitration. Hence, in presence of dilute HNO3, presence of dilute HNO3, देखिए क्या बनेगा? When you done reaction in the presence of dilute HNO3 in this way, in the presence of concentrate H2SO4, then NO2 comes, this is NO2 comes on ortho or para position. This is para-nitrophenol and it is ortho-nitrophenol. Para-nitrophenol, ortho-nitrophenol. But when you done in presence of concentrate H2SO4, then what happens? Concentrate H2SO4. Then 3 molecules of concentrate, ये dilute था, ध्यान रखें आप, और ये concentrate. In presence of concentrate H2SO4 reaction is done. Oblique HNO3 कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं आता. Consider H2SO4 and HNO3. It gives this compound. It is 2,4,6 trinitrophenol. It is also called picric acid. Picric acid. इस रिएक्शन में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो है आपका जो बन रहा है 2,4,6 ट्राइनिट्रोफेनॉल बहुत अधिक नहीं, अच्छा बन रहा है, ठीक है? प्रोडक्शन इज नॉट गुड, ठीक है? क्यों? उसका रीजन है हमारे पास में
ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। इसकी प्रेजेंस में फिनॉल का ऑक्सीडेशन भी हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आजकल जो कमर्शियली लार्ज स्केल पे पिक्रिक एसिड बनाते हैं उसके लिए ध्यान रखिएगा, हम लोग इसको पहले रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 और हीट करते हैं। इसको नहीं लिया मैंने, कंसंट्रेट H2SO4 एंड इट गिव्स this compound. Clear? This gives this compound. और फिर जो है इसको हम लोग कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट H2SO4 से हीट कराते हैं, तो आपको यहां मिलता है पिक्रिक एसिड। क्लियर? या यहां पर क्या मिला, 2 और 4 पे आपका जो है सल्फोनिक एसिड ग्रुप आया और फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं पिक्रिक एसिड। इस मेथड में अच्छी क्वांटिटी में पिक्रिक एसिड बनता है। अब यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, अभी आपने देखा था कुछ जनरल चीजें हैं, ये क्या था आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ये है आपका आर्थो नाइट्रोफिनॉल। इन दोनों के मिक्सचर से इन दोनों को हम लोग आइसोलेट कैसे करेंगे, दोनों को हम लोग अलग अलग कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ध्यान रखेंगे, ये आपका स्टीम वोलेटाइल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो ये स्टीम वोलेटाइल है और इजीली वोलेटाइल आपका होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। इसलिए हम लोग उसको डिस्टिलेशन मेथड से जो है इसको इजीली हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने कहा लो है, हाईली वोलेटाइल है, इसका क्यों, उसका रीजन आइए देखते हैं। ये आपका फिनॉल था, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, दिस इज आर्थोनाइट्रोफिनॉल। यहां एक्चुअली में यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, दिस इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपकी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो आपके डिक्रीज कर जाते हैं। यहां पर क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है and it is another molecule of paranitrophenol. Two molecules of paranitrophenol. यहाँ एक्चुअली में क्या है, इनके बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड है between two molecules. It is an intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, and you know due to intermolecular hydrogen bonding boiling point increases, so their boiling point is higher, their boiling point is low, so it is easily steam volatile but it is not.
इस प्रॉपर्टी के कारण इनको हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से आइसोलेट कर सकते हैं। कुछ अदर रिएक्शन से बात करते हैं। Some other important reactions में आई देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। फिनॉल इज कलरलेस सॉलिड, कलरलेस सॉलिड, बट when it is exposed in air, ठीक है ना, it becomes pink or sometimes red or brown. You know why? Due to oxidation. एयर की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बनाता है this compound. It's called parabenzoquinone. बहुत स्लो ऑक्सीडेशन होता है। Some molecules of phenol are oxidized. इस रिएक्शन को फास्ट करना है हमको, ऑक्सीडेशन रेट बढ़ानी है, तो हम लोग यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले सकते हैं, लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम और केमेनोफोर इन एसिडिक मीडियम। इनको प्रेजेंस करेंगे तो ऑक्सीडेशन रेट बढ़ जाएगा। ये जो आपके बने पैराबेंजोक्विनोन सॉल्ट, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। This is a molecule of phenol. This is also phenol. This is parabenzoquinone. This parabenzoquinone is bonded with phenol molecules with a hydrogen bond. ये intermolecular hydrogen bond नहीं होगा, ठीक है। और इसे कहते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फिनोक्विनोन। और ये आपका जो है पिंक से थोड़ा सा ब्राउनिश कलर ले लेता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये आपका फिनोक्विनोन है, ये क्लियर। नाउ अगेन कुछ फिनॉल्स के और भी रिएक्शंस हैं, ठीक है। कंडेंसेशन विद फॉर्मेल्डिहाइड, यहां फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, इनका हम लोग कंडेंसेशन कराते हैं अल्कलाइन मीडियम में। उससे आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर मिलते हैं, नोवोलैक और साथ में बेकेलाइट। इनके रिएक्शंस डिटेल में हम लोग पॉलीमर यूनिट में देखेंगे। पॉलीमर यूनिट में पढ़ेंगे बेकेलाइट कैसे बनता है, कैसे कंडेंसेशन होता है, वहां डिटेल में है। फिनॉल की हम लोग कैसे पहचान करते हैं, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। ये आपने पढ़ा था, सल्फ्यूरिक एसिड है, it is also an example of phenols. When you react with another molecule of phenol, this is, इसको आप चाहें तो यहाँ बेंजीन रिंग के रूप में लिख दीजिए in this, ठीक है ना, बात एक ही। यहाँ पर क्या होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाता है in this। ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इनके बीच यहां पर ये रिएक्शन आपका, this reaction is done in presence of POCl,
और ये जो कंपाउंड बना आपका, इसका नाम है फेनिल सैलिसिलेट, also called phenyl salicylate. It is also called Salol. It is a good antiseptic medicine. Antiseptic. वुंड्स वगैरह होते हैं, घाव वगैरह होते हैं उनमें, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज होता है। और एक और है रिएक्शन आपका, ये देखते हैं इसका, सैलिसिलिक एसिड का, ये भी फिनॉल्स में ही आता है आपका। When it reacts with methyl alcohol, ये एक्चुअली methyl alcohol का आइडेंटिफिकेशन भी है आपका। In presence of concentrated H2SO4, you heat it. फिर वही कंडीशन आ गई, वहां पर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप था, यहाँ पर भी है। दिस ग्रुप और दिस ग्रुप, इनके बीच में एस्टरिफिकेशन हो गया था, and it gives COCS3. It is called methyl salicylate, also called oil of wintergreen. इसमें कुछ आयोडिक्स जैसी स्मेल आती है। इसका यूज हम लोग जो है परफ्यूमरी में भी किया जाता है, परफ्यूम्स में थोड़ा बहुत, वैसे ये आपकी गुड मेडिसिन जो स्पेशली आपकी जो है रिमेटिज्म से जो आपके दर्द होते हैं, जॉइंट पेन होते हैं, उसमें ये मेडिसिन यूज होती है। या स्प्रेन जो मूछ आ जाती है, उसमें इसका यूज करते हैं। घरों में आयोडेक्स यूज किया जाता है दर्द वगैरह के लिए। आयोडेक्स का एक कंपोनेंट ये भी कंपोजिशन, ठीक है ना। तो ये इसका यूज जो है वहाँ पर आयोडेक्स में भी। ये कुछ बातें थी फिनॉल्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग देखेंगे ईथर्स के बारे में। क्लियर? ओके, आज ये खत्म करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ओके।